Assalamu alaikum, dear students. I am Amna Zohra Qureshi, Assistant Professor of English. Today we are going to start Book 2 of second year, that is about essays and heroes. Today we are going to start lesson number 1, that is The Dying Sun. Okay, ji. The Dying Sun by Sir James Joyce. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. अब यहाँ पे जो है in the first paragraph the writer talks about the size of the earth is compared to the universe or other stars कि कैसा है साइज का जो है हुजम जो है हमारी अर्थ इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स और अदर जो है प्लैनेट्स. तब तक तो प्लैनेट्स वजूद में नहीं आए थे जबकि ये रेफरेंस में बात की जा रही है. हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्टार्स. कंपैरिजन उसने किया है कि कितने हैं. वो कहता है ज़मीन इतनी छोटी है कि अगर किसी सितारे से कंपेयर किया जाए तो उसमें लाखों ज़मीनें भी समा जाएं तो फिर भी उसमें जगह जो है वो बच जाएगी. अच्छा जी, नेक्स्ट है and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance in the universe. अब यहाँ पे उसने बताया है कि हमारी जो अर्थ है ये एक समझ लें इतने ज़्यादा सितारे हैं जिस आसमान पे सितारे हैं देख आर काउंटेबल. इसी तरह से जो है हमारी ज़मीन का अगर कंपैरिजन किया जाए इट इज़ सो लिटल, इट इज़ लाइक जैसे ग्रेन ऑफ सैंड होता है, इट इज़ लाइक दैट. ओके जी. These millions of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. अब सेकेंड पैराग्राफ में उसे बताया है कि जिस तारे हैं जो सफ़र करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं. मोस्टली दे ट्रेवल अलोन. ये कंपनी में सफ़र नहीं करते हैं. So stuck. Screen is stuck. Okay जी. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event. Indeed, for one star to come anywhere near to another. अब उसने कहा कि ये बहुत ही एक जो है रेयर कहते हैं नायाब को, और इमेंस कहते हैं ह्यूज, बिग. ये आपको जो है सिनोनिम आते हैं पेपर में तो आपने इसके मीनिंग लिखने होते हैं. तो वो अब बता रहा है कि हमारी यूनिवर्स जो है उसमें जो सितारे जो सफ़र करते हैं दे आर फार ऑफ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई किसी के करीब आए. स्टक स्क्रीन इज स्टक. पैराग्राफ नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. These millions of stars are wandering about in space. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event. Rare, ये जो word है rare, this one. Rare का मतलब होता है नायाब, शाज़ नादर, जो कभी कभार होता है. Event indeed for one star to come anywhere near to another. और वो कहते हैं ये सितारे जो हैं सब मिलियन ऑफ माइल्स अवे सफ़र करते हैं और कुछ जो है ये ग्रुप में सफ़र करते हैं और कभी ही ये हो सकता है कि कोई सितारा दूसरे के करीब आ जाए.
For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean in a scale model in which the stars are shaped. Every ship will be well over a million miles from its nearest neighbor. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another star anywhere near it. मैंने अभी मिसाल दे दी, उसने समुंदर की मिसाल दी है कि जैसे समुंदर में एक जो शिप है दूसरे से बहुत फासले पे होती है और आप समझ लें कि पूरे समुंदर में एक ही कश्ती सफ़र कर रही है. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ फार दे आर फ्रॉम one another. So we believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. अब उसने कहा कि रेयर इवेंट तो हो ही सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप जो है बिल्कुल कोई सितारा दूसरे के करीब आ ही नहीं सकता. सो मिलियन ऑफ ईयर्स में कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई स्टार दूसरे के करीब आ जाए. एंड इट हैपेंड इन द पास्ट जस्ट एज द सन एंड मून राइज टाइड्स ऑन द अर्थ. वो कहते हैं जिस तरह कभी जैसे हमारी ज़मीन पे भी मद्दोजज़र होता है, कभी सूरज ज़मीन से बहुत करीब आ जाता है और कभी चाँद, तो हमारी ज़मीन पे जो है एक टाइडल पुल सा पैदा होता है. सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज़्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. और कहते हैं वो जो सितारे दोनों करीब आ गए थे, उन्होंने एक दूसरे के सरफेस के ऊपर ज़रूर कोई टाइड्स जो लहरें पैदा की होंगी, बट दे वुड बी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स व्हिच द स्मॉल मास ऑफ मून raises in our ocean. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उन सितारों ने एक दूसरे के ऊपर लहरें पैदा की होंगी वो डेफिनेटली बहुत ही ह्यूज होंगी एज कम्पेयर टू द टाइड्स जो हमारी ज़मीन के ऊपर समुंदर में जो मद्दोजज़र पैदा होता है उससे कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी. At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. और यहाँ तक कि जैसे वो एक दूसरे से पहले करीब आए दोनों सितारे और जब वो आपस में एक दूसरे से पीछे हटने लगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पहाड़ नुमा जो है एक मैस सब बन गया होगा. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher, and before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. अब वो कहते जैसे वो दूर हटे होंगे तो वो जो पहाड़ नुमा एक मैस इतना बड़ा बन गया था तो उसके टुकड़े फट के जो हैं वो खला में बिखर गए होंगे. These small pieces have been going round the sun ever since. और उस वक्त से अब तक जो है ये टुकड़े जो हैं सूरज के गिर्द घूम रहे हैं. They are the planets. और इनको क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स कहा जाता है. ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आर अर्थ इज़ वन. कुछ उनमें बड़े हैं और कुछ छोटे हैं और हमारी अर्थ भी उनमें से एक है. इसमें से क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है कि इस तरह जो है इनकी आपने बताना है हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाट आर प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की डेफिनेशन बताएंगे और फिर उसके बाद आप बताएंगे हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस. The sun and other stars we see in the sky are extremely hot, far too hot for life to exist on them. जो हमें सितारे दिखाई देते हैं यूनिवर्स में दे आर सो हॉट. इतने गर्म है कि गर्म नहीं है बल्कि समझ ले आग है. So also not no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. Gradually, they became cooler until now. They have very little heat of its own left. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on the earth. अब क्या है वक्त के साथ साथ शुरू में तो ये बहुत ही ज़्यादा दहकते हुए थे सितारे और फिर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें ठंडक पैदा हो गई और अब इनकी जो है जितनी भी गर्माइश है वो कहाँ से आती है? वो सूरज की जो रेडिएशन है उससे इनको हीट मिलती है. जैसे हमारे अर्थ पे भी कहाँ से आती है? सूरज से. In the course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. और वक्त के साथ साथ जो है हमारे भी
इन्हीं पुलिंग पीसीस में से एक पे जो है जिंदगी मार्ज़ वजूद में आई. वी डू नॉट नो हाउ, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ. व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, क्यों और कैसे हुआ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये स्टार्ट हुआ था. whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. और उनमें क्या होता था कि एबिलिटी होती थी कि मरने से पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते थे इन टू पार्ट्स. But from these humble beginning came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced being sorry produced being whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religion in which lie their highest hopes and noblest desires. अब चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती गई, उसमें फीलिंग्स भी आ गई, एम्बिशंस भी आ गई, सेंस ऑफ ब्यूटी और रिलीजन एंड ऑल दीज थिंग्स और होप और डिजायर टू एक्सेल इन लाइफ, इन तमाम चीज़ों ने जो है लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. फिर उसके बाद जो है, although we cannot speak with any certainty, it seems almost likely that the human race came into existence in some such way as this. Certain नहीं है, the writer is not certain about this thing कि इस तरह जिंदगी वजूद में आई. This is his assumption है, ये उसका एक ख्याल है कि इस तरह हुआ होगा. Standing on a little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. अब वो कहते हैं कि हम यहाँ पे एक छोटे से रेत के जर्रे, रेत से जर्रे से मुराद यहाँ पे जमीन है जिसमें हम बैठते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर क्रिएशन. आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग ऑफ फेयर. पहला हम में जो एहसास पैदा होता है वो हम डर जाते हैं. वी आर स्केयर्ड, खौफजदा हो जाते हैं. And we find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand, frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole of human history so very small in comparison. अब वो कहता है कि हमें पहला जो फीलिंग होती है वो खौफ होती है. क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि तमाम जो भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, ठीक है. और दूसरा ये है कि हमारा अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा छोटी है. और तीसरी बात उसने कही फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, और ये कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में या अर्थ में जो है ये इंसान पाया जाता है, इसके अलावा कहीं पाया नहीं जाता. इसलिए भी हम डरते हैं कि अगर ये खुदा न खास्ता ये वर्ल्ड, ये दुनिया, ये अर्थ खत्म हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे. And because of the littleness of our home in space, a millionth part of the grain of sand out of all the sea sand in the world. और कंपैरिजन अगर करते हैं तो हमारी दुनिया जो है वो बहुत ही छोटी है, रेत के जर्रे के भी 10वां करोड़वां हिस्सा है. But above all, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except the earth. अब वो कहता है ये तो छोटी छोटी वजूहात ऊपर मैंने बताई, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि सिर्फ अर्थ पे ही इंसान पाए जाते हैं और यहाँ पे जिंदगी पाई जाती और कहीं पे भी नहीं पाई जाती. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. और empty spaces जो इसके इर्द गिर्द है वहाँ पे अगर जिंदगी इस तरह नहीं क्यों नहीं वजूद में आ सकती, क्योंकि लाइफ वुड फ्रीज ओवर देयर. सारे वहाँ पे बहुत ठंडक है. मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट फॉर एज टू मेक लाइफ on it impossible. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. अब वो कहता है उसका अपना ही ख्याल है, सिस्टम का ही शायद ये कोई था कि इस प्लानिटरी सिस्टम में सिर्फ जिंदगी का वजूद ना हो, लाइफ तो ऐसी आ गई है. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. वो कहते हैं कैलकुलेशन हमें बताती है कि इस तरह के सिस्टम जो हैं only very few such system in the space, बिल्कुल चंद एक इस तरह के सिस्टम इस दुनिया में हैं. और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स पेरेंट्स. जिंदगी के लिए, रहने के लिए हमें जो है वो सिर्फ चंद चीज़ें ज़रूरी हैं. वो है अपेरेंस कायम रहे,
यानी लिक्विड फॉर्म में रहें, सॉलिड फॉर्म में रहें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज टेम्परेचर। सबसे अहम चीज़ जो है वो दर्जा हरारत है। अगर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तो तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, और बहुत कम होगा तो तमाम चीज़ें जम जाएंगी। सो सॉलिड सॉलिड में रहे और लिक्विड लिक्विड में रहे। एट दैट सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए। द सन द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। और दूसरे सितारे जो हैं वो इतने गर्म है कि वहाँ पे आप तो रोस्ट हो जाएं जाके। We may think of them as collection of fires scattered through the space। और हमें ये लगता है कि जैसे जो है these are collection of fire, जैसे आग के शोले होते हैं। ये है providing warmth in surrounding where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero। ये सिर्फ और सिर्फ उसने दूसरे बताया है टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम है। अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं। Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distances where the temperature is neither too hot nor too cold। अब वो कहता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक नैरो बेल्ट पे ही पॉसिबल है, जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही कम हो, मॉडरेट हो। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। और इन बेल्ट से अगर बाहर निकल जाएंगे तो जिंदगी बिल्कुल जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप। अगर इनमें चले जाए तो ये हम जल जाएंगे। A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 million part of the whole of the space, and even inside them life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done। अब वो कहते हैं कैलकुलेशन अगर लगाई जाए तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत लिमिटेड सा प्लेस है जहाँ पे ये पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन वो, और ये जो अब ये रेयर इवेंट हो चुका है, ये हमेशा नहीं हो सकता, ये कभी हुआ है। Probably only one star in 100,000 has a planet going around it at the right distance for life to possible on it। This is the end of the lesson। So 18 students आ जाइए। अक्सा नासिर, आयशा बतूल, फरखंदा जमील, हिरा हफीज, एंड देन ईमान सिद्दीक, कायनात काशिफ, लाइबा सुलेमान भट्ट, लाइबा जफ़र, माहम सलीम, नूरुल हुदा, रायहा, समरा जावेद, सुंदस अली, तुबा खान। तुबा खान कौन है? तुबा जमील, वजिया खलील, जैनब मजीद और जूबिया नदीम। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? These students are present today। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंड पे एक्सरसाइज है, ये भी देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था 60-40% का जो है ये रेशो होती है पेपर में, कि 60% जो है वो आपके टेक्स्ट में से आएगा, और 40% जो है वो जो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो अपनी चॉइस से देता है। यानी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आपने ये भी तैयार करने हैं, और आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस, वो भी तैयार करने हैं। हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट? What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? What happened when the wandering star came nearer and nearer? ये तकरीबन repetition होगी इन तीनों सवालों में। Then, what are planets and how did they come into existence? This is very important question। इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। Why is there no life on stars? ये भी important है। Write a note on the beginning of life, ये नहीं आता होता। Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give so many reason, as many reason as you can। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आता है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल से आपने आंसर नहीं देना, इसको ब्रीफ आंसर देंगे। What in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies?
डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, ये आपने क्वेश्चन करने हैं तैयार और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लें। एंड दिस इज द लास्ट चांस कि आप रिवीजन भी कर लें और साथ में आपकी तैयारी भी हो जाए। ठीक है, कल आपने इसके क्वेश्चंस ये वाले जो हैं टेक्स्ट के एंड पे क्वेश्चन और इसके ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं और मैं कल आपसे सुनूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, सी यू टुमारो, हैव अ